Good evening, everyone, and praise the Lord. मैं सबों के सामने प्रेज लॉर्ड कहता हूँ और सबों से गुड इवनिंग भी कहता हूँ। What a privilege it is for us to worship the only one and living God. सिर्फ और सिर्फ वाहिद जिंदा खुदा की इबादत करना कितना ही बड़ा इस्तेखाक है ना हमारे लिए। Shall we pray and then meditate the scriptures? हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम कलाम का मुताला करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, once again thank you and worship you for opening thy place, Lord, so that we can boldly come into the presence and worship you. Lord, thou hast not only saved us, but thou hast made us thy worshippers. Lord, even as we seek to explore a part of the scriptures, Lord, make it real to us. May help us so that we can get the eyes of understanding. Lord, so that we can bring a worthy worship unto you this morning. Lord, hide us behind the cross and use us both as instruments of righteousness in thy precious and holy hands. For you offer this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. Let's read one verse from Romans 1 and verse 20. रोमियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20 में से हम एक आयत पढ़ेंगे। Romans 1 and verse 20, it says, रोमियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20 में लिखा हुआ है, For since the creation of the world, his invisible attributes, that is, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, being understood by what he has made, that is creation. क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ अज़्र बाकी नहीं। For even though verse 21, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks. 21वीं आयत, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। My dear friends, this is the blame that God puts on mankind. अजीजों, ये है एक इल्जाम जो खुदा इंसानों पर लगाता है। He says, you people are not giving me what I deserve. खुदा हमसे कहता है कि मैं जिसका हकदार हूँ, आप लोग तुम्हें वो नहीं दे रहे हो। The Bible gives a very clear picture of who God is. खुदा का कलाम बाइबल साफ तरीके से हमें बयान करती है कि खुदा कौन है। It reveals his identity. खुदा की आइडेंटिटी वो बताती है। His character, his nature and attributes. उसकी किरदार और उसके जो भी उलूहियत है वो कलाम बयान करती है। Once you discover who God is, एक बार जब आप पता करेंगे कि खुदा कौन है and know his attributes, और उसके सिफतें अगर आप जान जाएंगे, then you come to terms who you are. तब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। This is the phase of life we all must come to. हम सबों को जिंदगी के इस पहलू के जरिए से गुजरना ही पड़ेगा। Know the real God, सच्चे खुदा को जानना है, admire him, उसे जानकर खुशी मनाना है, love him, उसे प्यार जताना है, and then worship him with all your heart. और तहे दिल से, पूरे दिल से उसकी इबादत भी करनी है। Praise God, God has made us like that. लेकिन खुदा का शुक्र हम इस बात का मनाते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक भी बनाया है। Last time when I came around to this place on 17th August, पिछली बार जब मैं 17 अगस्त को यहाँ पे आया था, we meditated on the most lovable attribute of God, that is his forgiveness. खुदा की बहुत अच्छी प्यारी सिफत जो है, मतलब उसकी मुआफी बख्शने का किरदार जो है, उसके बारे में हमने मुताला किया था। In the book of Nehemiah chapter 9 and verse 17 it says, नहम्याह की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, Lord, you are a God of forgiveness. वहां पे लिखा हुआ है कि ए खुदा, तू मुआफ करने वाला खुदा है। And on that day we meditated, we found out 4 things. और उस दिन जब हम कलाम का मुताला कर रहे थे तो हमने 4 बातें सीखी। The 4 foundations for this forgiving attitude of God. खुदा किस लिए मुआफ करता है, मुआफी बख्शता है, उसको लेकर 4 बुनियादी बातें हमने देखी थी। Unconditional love, number 1. पहली बात ये थी कि खुदा बेशर्त हमें मुआफ करता है। Uncompromising price, he had to send his own son. खुदा ने अनकॉम्प्रोमाइज प्राइस दे के अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। Unending grace. और खुदा की मोहब्बत भी
कभी भी खत्म नहीं होने वाला फजल है। For the Bible says, "For by grace we are saved through faith." खुदा का कलाम बयान करता है कि हम फजल से ईमान के जरिए से नजात पाए हैं। And fourthly, there was this unblemished sacrifice of Lord. और चौथी बात ये बात हमने देखी थी कि हमारे खुदावंद यीशुआ का बेऐब कुर्बानी। And today we shall meditate one more attribute of God. आज हम और एक सिफत के बारे में हम देखेंगे, उस पर मुताला करेंगे जो खुदा का है। What a coincidence is when we sang song number 38. हम जब सॉन्ग नंबर 38 गाए थे तो कितना ही कोइंसिडेंस हुआ था ना। The thing we are meditating was found in that song. हम जो मुताला करने वाले हैं वो उस गाने में मौजूद है। And one of the words that attracted me was, और उस गाने में एक लफ्ज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा सोचा था दुश्मन that उन्हें उसको मारूंगा he will get a victory. दुश्मन ने सोचा था कि मैं तलवार खींचूंगा और मैं गालिब आ जाऊंगा, But that was not so. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। But the Lord acted on the behalf of his people. क्योंकि खुदा ने अपने लोगों के वास्ते उसने अपने लोगों के बारे में उसने काम किया था। So the title of my message, तो मेरे इस पैगाम का टाइटल या लकबा ये है, Our Lord is a warrior. लकब ये है कि हमारा खुदावंद मर्द जंग है। This word is found in Exodus 15 and verse 3. खुरूज की किताब 15 व बाब और आयत नंबर 3 में इस लफ्ज को हम देखते हैं। If you can read this verse, हम वहां उस लफ्ज को पढ़ेंगे। the Lord is a warrior, the Lord is his name. यहोवा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। So what is worship? तो इबादत क्या होती है? Worship is knowing the attribute of God, experiencing the attribute of God. इबादत का मतलब ये होता है कि खुदा को जाने और खुदा की सिफतों को जाने। Lord, you are a God of forgiveness, you have forgiven me. That's our experience. ए खुदा, तू तो मुआफी बख्शने वाला खुदा है और तूने मुझे भी मुआफी बख्शी है, ये एहसास है। Lord, you are a warrior, you have fought on my behalf. ए खुदा, तू तो साहिब जंग है, तूने मेरे वास्ते जंग लड़ी है। And saying those things, giving God the glory, that is worship. और इन बातों को समझकर, इन बातों को इकरार करते हुए खुदा को जलाल अगर हम सौंपेंगे तो वो ही इबादत होती है। The important theme that runs right from the first book, that is Genesis, to the first 5 books. पैदाइश की किताब से लेकर आखिरी किताब मुकाशिफा तक हम एक बात को देखते ही रहते हैं। That is the divine nature of God acting as a warrior. वो क्या है कि खुदा एक साहिब जंग की तरह वो काम में मशगूल रहता है। Now we all love to sing, the Lord is my good shepherd. हम सब बहुत अच्छे से खुशी से गाते हैं ना कि यहोवा मेरा चौपान है, He leads me into the green pastures. वो मुझे हरियाली के चरागाहों में ले जाता है And he leads me beside the still waters. और वो मुझे बहुत अच्छे पानी के पास मुझे ले जाता है। What a great life that would be. वो बहुत अच्छी जिंदगानी होती है वो। A softer side of God. खुदा की एक सॉफ्ट साइड वहां हम देखते हैं। But there is a different picture God is picturized in this verse. लेकिन इस आयत में एक और एक पहलू है, एक मंजर है जो खुदा हमें दिखाता है। The Lord is a warrior, the Lord is his name. यहोवा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। So this verse is found in Exodus 15:3. We have already read it, but what's the context? तो हमने खुरूज की किताब 15 की 3 में हमने ये बात देखी है, लेकिन वहां का कॉन्टेक्स्ट क्या है? After the Israelites have been liberated from the slavery of Egypt, वहां क्या हुआ था? इसराइलियों को खुदा ने मिस्र की बंदिश में से, गुलामी में से छुड़ाया। the people are all jubilant, happy, अब सब के सब लोग बहुत खुशी मना रहे थे। and this is a song of Moses. अब ये मोशे का एक गाना है। The miraculous crossing of the Red Sea. वो लोग वहां पे बहरे कुल्ज़म यानी लाल बहर को वो लोग आसानी से पार करके चले गए। God parted the Red Sea so that the people could walk on dry land. खुदा ने अपने लोगों के लिए उसको फाड़ दिया, बहरे कुल्ज़म को, ताकि वो लोग सूखे जमीन पर जाकर उस पार हो जाएं। Even that song was song 38 also tells us the same thing. और जो गाना हमने गाया था सॉन्ग नंबर 38 उसमें ये सारी बातें हैं। So there is not only a physical deliverance for the Israelites. तो यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तरीके से मखलसी नहीं मिली, बल्कि there was a revival among those people. उनके अंदर, उनके बीचों बीच एक बहुत
अच्छा सा रिवाइवल आ चुका था। The song itself is a song of triumph, victory. ये गाना जो है ये एक गलबा हासिल करने वाले का गाना है। They were filled with gratitude for God intervening on their behalf. उनके दरमियान खुदा ने जो अपना काम किया है उस बात को लेकर वो लोग खुशियां मना रहे हैं। My dear friends, how do we apply this as what he calls a redemption story? अजीजों, ये मखलसी का या छुड़ाए जाने का ये दास्तान जो इसराइलियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम कैसे अपना सकते We हैं? believers are not alone in our struggles. हम जो यीशु मोमिन लोग हैं, हम हमारी जिद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। God actively engages the opponent, our opponents. हमारे खुदा जो है वो हमारे मुखालिफों सभी को वो देख लेता है। The Lord is a warrior. The Lord is his name, affirms his sovereignty and ultimate control, full control. यहोवा तो साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है, इसीलिए वो अपनी खुद मुख्तारी वो दिखाता है। When we know this attribute of God, जब आप इस खुदा के इस सिफत को जानते हैं, we can exude confidence and faith. तब हम खुदा पर हमारा भरोसा और इतिकाद रख सकते हैं। And we can have this knowledge that God fights on our behalf. और इस फहम में, इल्म में हम खुशी मनाएंगे कि खुदा हमारे लिए साहिब जंग होकर जंग लड़ता है। My dear friends, life is a battle. अजीजों, याद रखें कि जिंदगी एक जंग है। At every point of time, the enemy is always striving to crush us. हर एक पल हमारा दुश्मन जो है वो हमें निचोड़ कर हमें दबा के रखना चाहता है। And we are on the back foot always. और हमेशा हम पीछे हटने के लिए तैयार हो जाते हैं। This imagery is not about the physical struggles, but also spiritual warfare. ये मंजर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक जिस्मानी तरीके से लड़ने वाले जद्दोजहद या जंग के बारे में नहीं, बल्कि रूहानी जंग के बारे में भी ये मंजर है। But when we know that Lord is a warrior, लेकिन जब हम इस ख्याल में आएंगे कि हमारा खुदा जो है वो साहिब जंग है, we can be assured that God divinely intervenes on our behalf. तो हम इत्मीनान से रह सकते हैं कि हमारे खुदा आसमान से वो हमारे लिए जरूर काम करेगा। Why do we worship Him today? आज हम हमारे खुदा की इबादत क्यों करने के लिए आए हैं? Reason number one is the joy of liberation. पहली वजह यह है कि नजात की खुशी। We were oppressed. हम तो दबे हुए थे। The people of God were oppressed for nearly 400 years. खुदा के लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि तकरीबन 400 सालों तक बंदिश में दबे रहे थे। Living hopeless and shameful life. और नाउम्मीद होकर बहुत जिल्लत की जिंदगियां जी रहे थे। Until Moses came on the scene and God purposed to liberate his people. मोशे वहां आकर उन लोगों को खुदा की तरफ से उनको छुड़ाने के लिए आने तक ऐसा ही हो रहा था। In Exodus 13 and verse 3 it says, Egypt is house of slavery. हम देखते हैं खुरूज की किताब 13वां बाब और आयत नंबर 3 में हम देखते हैं कि मिस्र को गुलामी का घर कहा गया है। When we study this story, जब हम इस दास्तान को पढ़ेंगे, the departure from the land of Egypt, मतलब मिस्र के मुल्क से इसराइलियों के गुजर के उस पार जाने का, it foreshadows the greatest redemption, our redemption with the work of Lord Jesus Christ. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब कुछ इसराइलियों की ये दास्तान जो है, ये सब कुछ हमें हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे पास आकर हमें जो नजात देकर दुनिया से बचाए हैं, इन बातों को वो दिखाता है। The people of Israel were delivered from physical bondage. इसराइली लोगों को जिस्मानी तरीके से, जिस्मानी गुलामी से बचाया गया था। But we have been delivered from the spiritual bondage. लेकिन हमको तो खुदा ने रूहानी गुलामी से छुड़ाया है। Only possible to the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत और जी उठने से ही मुमकिन हुआ है। Before we were redeemed, we were in the Satan's net. नजात पाने से पहले हम तो सातान के फंदे में फंस गए थे। We have been trapped very badly. हम उसके फंदे में बहुत बैडली हम उसके फंदे में फंस चुके थे। Because John's Gospel 8 and verse 34 says, बहुत बुरे तरीके से फंस चुके थे। अब लेकिन खुदा के कलाम में यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 और आयत नंबर 34 में लिखा हुआ है, everyone who commits sin is a slave to sin. वहां खुदा का कलाम बताता है कि जो भी गुनाह करेगा वो गुनाह का गुलाम होगा। Now we'll explore how come this great victory has been accomplished. अब हम जरा झांकेंगे और देखेंगे कि ये बहुत बड़ा अजीब गलबा जो है, अजीम गलबा जो है वो हमारा कैसा हो गया।
Before they were to go out of the boundaries of Egypt, इस्राएली लोग मिस्र को छोड़कर उसके सरहदों को पार करके जाने से पहले God gave them a command. खुदा ने उनको एक हुक्म दिया था। What was that command? वो हुक्म क्या था? You prepare a Passover lamb. खुदा ने कहा था एक पस्का लैम को आप ज़बह करना And you kill that lamb. और उसे आप कुर्बानी करना And the blood should be taken and applied to the doorposts of their houses. और आपको क्या करना है, उसके खून को लेना है, उसका खून लेकर घर के फाटकों पे उसे लगा देना। It was a compulsion. It was a commandment. वो तो बहुत जरूरी है, करने के लिए दिया गया एक हुक्म है। Why was God giving them this instruction? खुदा ये जो हुक्म है ये क्यों उन्हें दे रहा है? That way they would be spared from the onslaught of the angel of death. ताकि आने वाले मौत के फरिश्ते के वार से वो लोग बच सकें। That was the last plague. ये है आखिरी प्लेग। The angel of death would kill all the firstborn. क्योंकि मौत का फरिश्ता जब आएगा तो पहलोटों को सबों को वो हलाक कर देगा। But when the angel of death visited the land of Egypt, लेकिन जब वो मौत का फरिश्ता उस मिस्र के मुल्क में जब दाखिल हुआ, the Israelites were spared. तब क्या हुआ था? इस्राएलियों को छोड़ दिया गया, बख्श दिया गया। The angel of death just saw the blood applied on the doorpost and it just passed away. और मौत के फरिश्ते ने सिर्फ और सिर्फ उन फाटकों पे जो खून रखा गया है या छिड़का गया है उसे देखकर उन घरों को पार करके चला गया। Now there is a very important point we have to notice. We have to notice. अब हमें बहुत एहतियात से एक नुक्ता देखना जरूरी है। When the angel of death came, जब मौत का फरिश्ता आया, when it came to the house of one of the Israelites family, जब वो एक इस्राएली घराने के करीब आया, it just saw the blood applied on the doorposts. और वो उस डोरपोस्ट पर जो खून लगा गया था उस खून को उस फरिश्ते ने देखा। It did not see who the people inside were, whether they were worthy, whether they were good or bad. लेकिन उस फरिश्ते ने उस घर के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं देखा कि वो लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, लायक हैं, नालायक हैं, क्या हैं। All that the angel of death recognized was the application of that blood. मौत का फरिश्ते ने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ एक बात पर उसने गौर किया और वो बात यह है कि क्या उस घर के ऊपर, फाटकों के ऊपर खून है या नहीं। When the angel saw the blood, it just passed away. जब उस फरिश्ते ने उस खून को देखा, उस घर को पार करके चला गया। This event foreshadows Christ as the Lamb of God. और ये मंजर जो है ये हमें मुस्तकबिल में आने वाले खुदावंद यीशुआ को दिखाता है जो खुदा का बर्रा होकर आने वाला है। Whose sacrifice and giving us his precious blood delivers us from death. खुदावंद यीशुआ का सलीबी मौत जो है, कुर्बानी जो है, हमें भी मौत से छुड़ाता है। Twice in the book Gospel according to John, यूहन्ना की खुशखबरी में दो बार 129 and 136, 129 और 136, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. वहां पे लिखा हुआ है कि देखो खुदा का बर्रा जो तमाम दुनिया के गुनाह को उठाकर ले जाएगा। And one more verse from Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no remission of sin. और इब्रानी की किताब में भी और एक बात हम देखते हैं कि खून के बहाए बगैर गुनाहों की मुआफी नहीं होती। So there is no way of forgiveness unless a precious blood was sacrificed. तो किसी न किसी का खून, मतलब पाक खून जब तक बहाया ना जाएगा, फिदे के तौर पर दिया ना जाएगा, तब तक नजात या मुआफी हासिल नहीं होती। Apart from the Passover lamb, apart from the Lamb of God, Jesus Christ, sacrifice, there is no forgiveness of sins. उन दिनों में पस्का का वो बर्रा जो है उसके बगैर, इन दिनों में खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशुआ के बगैर नजात बिल्कुल हासिल नहीं है। So the Lord is a warrior. तो हमारे खुदा कौन है? वो साहिब जंग है। How did he act on our behalf? हमारे लिए उसने क्या क्या किया? He ordered the Passover lamb to be sacrificed. उसने उस पस्का के उस बर्रे को उसने ज़बा किया। And he gave his only son, Lord Jesus Christ, to be sacrificed. लेकिन आज खुदा ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते खुदा का बर्रा बनाकर इस दुनिया में हमारे वास्ते कुर्बानी की। And that's the basis for the forgiveness of us. और ये है हमारे गुनाहों की मुआफी का बुनियाद।
Now the Israelites, they came out of the boundaries of Egypt. अब क्या हुआ, इसराइली लोग मिस्र के सरहदों से पार होके बाहर आ गए। As they came out, they faced a bigger hurdle. जब बाहर निकले तो उनके सामने और बहुत बड़ा मुश्किल उनके सामने आया है। There was this Red Sea in front of them. उनके सामने क्या था? उनके सामने बहरे कुल्ज़म मतलब लाल समुंदर था। To cross it, it's a mission impossible. लाल समुंदर को, बहरे कुल्ज़म को पार करना उनके लिए नामुमकिन सा था। But Moses said to his people, लेकिन मोशे ने अपने लोगों से कहा, do not fear. डरो मत, Stand still खामोश खड़े हो जाओ and see the salvation of the Lord. और यहोवा की नजात को देखो। The Lord will fight for you यहोवा आपके लिए जंग लड़ेगा, while you keep silent. लेकिन आपको खामोश खड़े रहना पड़ेगा। Marvelous words. बहुत अजीम बातें हैं। The same commandments holds good for us today. आज भी हमारे वास्ते भी वही अहकाम जो मोशे ने दिए थे, हमारे वास्ते भी वो लागू होते हैं। The idea is the same. ख्याल तो वहाँ और हमारे यहाँ सेम है। Stand still and see the salvation. हाँ, वो ख्याल या तस्वर क्या है कि खामोश खड़े रहो और खुदा की नजात देखो। Salvation and redemption does not accrue to us because of our works or good deeds. नजात और मखलसी हमारी नेकोकारी, हमारे अच्छे कामों से हम उसको हमारे लिए हासिल नहीं कर सकते। Keep silent and see the salvation of the Lord. खामोश खड़े रहो और खुदा जो नजात देता है उसे देखो। Our Lord is a great warrior. हमारा खुदा जो है वो बहुत बड़े साहिब जंग है। And you must ask me, brother, what was the battle that the Lord was fighting? और आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई बताएं कि खुदा ने वो कौन सा जंग, बड़ा जंग खुदा ने लड़ा था। How can you say that our Lord is a great warrior? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे खुदा जो है, यहोवा जो है, वो बड़े साहिब जंग हैं। A great battle took place on the cross. सलीब पर बहुत बड़ा जंग हुआ था। Forces of Satan, forces of darkness acting against Christ. सातान के लश्कर और तारीकी के लोग, मतलब वो लश्कर जो हैं वो खुदावंद यीशुआ के खिलाफ लड़ रहे थे। It was very nigh impossible to get out of that situation. और उस हालत में से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। But when our Lord was fighting on our behalf, लेकिन जब हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते जंग लड़ रहे थे, our Lord overcame all these hurdles. हमारे खुदावंद इन पड़ावों को, इन सभी पड़ावों को पार करके जीत कर आए। He was distressed emotionally, physically, and all types of torture. जिस्मानी तरीके से और रूहानी तरीके से सब तरह की मुसीबतें हमारे खुदावंद यीशुआ ने बड़ी अजियत सलीब पर हमारे वास्ते उठाई। And he got a great victory. और इस तरीके से हमारे वास्ते बहुत बड़ा गलबा, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। We know the first couple, Adam and Eve, sinned. हम जानते हैं कि पहले मियाँ बीवी जो हैं, आदम और खवा, वो लोग गुनाह किए थे। God gave a curse. खुदा ने एक लानत भेजी। He cursed the land. जमीन पर अपनी लानत भेजी। And he says, God says, और खुदा ने कहा, thorn and thistles will grow on that land. ऊंट कटारे सभी इस जमीन पर उगेंगे। And they will really harass you. और आप लोगों को ये तड़पाएंगे। And we know because of this curse, और हम जानते हैं कि इस लानत की वजह से our Lord put a crown of thorns on his head. हमारे खुदावंद यीशुआ ने क्राउन ऑफ थॉर्न्स अपने सर पे लगाया है। To nullify that curse. और वो क्योंकि उस लानत को मिटाने के वास्ते। Sin brought death. गुनाह ने मौत लाया था। For the wages of sin is death. That's what Romans says. क्योंकि रोमियो की किताब में खुदा का कलाम बताता है कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है। But Jesus nullified this death when he was resurrected on the third day after his crucifixion. लेकिन हमारे खुदावन तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे तो इस मौत को हलाक करके नेस्तो नाबूद कर दिए। In the process, our Lord was fulfilling a prophecy. और इस दौरान हमारे खुदावंद यीशुआ एक नबूवत को पूरा भी कर रहे थे। In Isaiah 25 and verse 8, यशायाह की किताब चैप्टर 25 और आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, he will swallow death forever. वहां लिखा हुआ है कि वो मौत को हमेशा के लिए निगल लेगा। He will swallow death. वो मौत को निगल लेगा। Oh death, where is thy sting? इसीलिए कहा जाएगा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ है? Oh grave, where is thy victory? कब्र तेरी जीत कहाँ है? Our greatest enemy was death.
हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मौत है। And because of the redemption, because of the salvation, today we don't fear death. और क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें नजात बख्शी है और छुड़ाया है, आज के दिन हम मौत से डरते नहीं हैं। Today we count death as a promotion to glory. आज हम मौत को इस तरीके से देखते हैं कि मौत के जरिए से हमें प्रमोशन मिलेगा ताकि हम खुदा के जलाल में चले जाएं। Today we count death as waking up into the portals of heaven. आज हम मौत को इस तरीके से देखते हैं कि हम मौत में सो जाएंगे और खुदा के उन रहाइश गाहों में हम आंखें खोलेंगे। Today we count death as one step to heaven. हाँ, आज हम मौत को सिर्फ और सिर्फ आसमान की बादशाहत में पहुंचने के लिए एक कदम करके समझते हैं। We count death as a beginning of eternity. आप अब्दियत की शुरुआत करके मौत के बारे में हम समझते हैं। Stand still and see the salvation. खुदा तो हमसे भी कहता है कि खामोश खड़े रहो और यहोवा की नजात देखो। Today we thank God we did not have to do anything to earn salvation. आज हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आज हमें भी नजात हासिल करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ा। We were silent and our Lord accomplished the victory. हम for us. खामोश रहे लेकिन हमारे खुदावंद हमारे लिए नजात हासिल करके हमें बख्शे। So first of all, we thank Him for the sacrifice, supreme sacrifice. तो पहली बात यह है कि हम खुदावंद की तमजीद इसलिए करेंगे क्योंकि उसने हमें बहुत बड़ी नजात दी है। And secondly, we thank Him because He overcame the enemy. और दूसरी बात यह है कि उसने मुखालिफ पर जीत हासिल की है, इसीलिए उसकी तमजीद करेंगे। We did not have to do anything to earn our salvation. हमारी नजात को हासिल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। Today I was speaking in a church last week. पिछले हफ्ते मैंने हमारे चर्च में पैगाम देते आया। The prime duty of man is threefold. और मैंने कहा था कि इंसान के 3 फराइज हैं। The first one, पहला फर्ज, get this salvation very free of cost. खुदा के हाथों से मुफ्त में नजात हासिल करे। Yes, it's free, freely given. हाँ, ये तो बहुत मुफ्त है, मुफ्त में खुदा देता है। It cost the God, the Father, His Son. लेकिन उसका कर्ज किसने अदा किया? आसमानी बाप ने अपने बेटे को देना पड़ा। It cost the Son His life. और खुदा के बेटे को अपनी जान देनी पड़ी। So this is free. लेकिन हमारे लिए तो वो मुफ्त है We have to obtain it. और उसे हासिल करना है। The second duty, और दूसरा फर्ज ये है, once we obtain salvation, एक बार जब हम नजात हासिल करें we must become His disciples. तो उसके शागिर्द हमें बनने हैं। Disciples is costly. शागिर्द बनना बहुत कीमती है। In Luke 14, our Lord says, लूका की खुशखबरी बाब नंबर One who 14 में खुदावंद यीशु कहते हैं, one who does not hate his brothers, sisters, mother, father, and he cannot be my disciple. खुदावंद यीशु ने वहां कहा था कि अगर कोई अपने माँ बाप से, भाई लोगों से, बीवी से, सबसे अगर अदावत नहीं रखेगा तो वो मेरा चेला या मेरा पीछा होने वाला हो नहीं सकता। You may have to leave everything to become a disciple. शायद इंसान को सब कुछ छोड़ना पड़ता कि खुदावंद यीशुआ के शागिर्द हो जाए। It's costly. वो बहुत कर्ज अदा करके कीमती होती है वो चीज। And what's the third thing? और तीसरा फर्ज क्या है? Once you become a disciple, एक बार जब आप खुदावंद के शागिर्द बन जाएंगे, you make others a disciples. दूसरों को भी शागिर्द बनाओगे। What is the cost? और इसकी कीमत क्या है? You have to pay with your life. आपकी जान देकर आपको वो काम करना पड़ेगा। We have to end up as martyrs. खुदावंद यीशुआ के लिए हमें मार्टिर्स होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा। That's what Matthew did. मत्ती ने ऐसा ही किया था। Follow me, he followed Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ ने कहा मत्ती से मेरे पीछे हो ले, और वो खुदावंद यीशुआ के पीछे हो लिया। He became his disciple. खुदावंद यीशुआ का शागिर्द हो गया And he went on to make others as disciples. और दूसरों को भी खुदावंद यीशुआ के चेले बना दिए। And history says और तारीख में लिखा हुआ है he ended up as a martyr. कि वो एक शहादत देने वाला शाहिद बनकर मरा था। What a great Christian life is. ये कितनी बड़ी अजीम यीशुई जिंदगी है ना। Now the third thing, तीसरा फर्ज, the enemy has been subdued. हमारा मुफ्तरी जो है, दुश्मन जो है, उसे नीचे हांका गया है, हारा गया है। The Egyptians whom you see today
you will not be seeing tomorrow. खुदावंद ने उन दिनों में इस्राएलियों से कहा कि आज के दिन जिन मिस्री लोगों को तुम लोग देख रहे हो, कल के दिन इनमें से कोई बाकी नहीं रहेगा। All the perpetrators of injustice and oppression lay dead on the shore. आप पर जो भी हुक्मरानी करते हुए आपको तड़पाते, आपको मुश्किल में डालते आए, जो नाराजगी से पेश आए, ये सब के सब मरकर दरिया के किनारे साहिल पर पड़े हुए दिखाई दिए थे। What about our life? लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होता है? Through the sacrifice on the cross of Calvary, our Lord dismantled or disarmed the enemy. सलीब पर खुदावंद यीशुवा ने जो जंग और जो लड़ाई जीती है, उस जंग के दौरान हमारे सामने, हमारे वास्ते, हमारे दुश्मनों को भी, मतलब सातान को और मौत को खुदावंद यीशुवा ने हरा के हंका दिया। He disarmed the rulers and authorities. खुदावंद यीशुवा ने जो रूलर्स और हाकिम होते हैं, उन सबों को उसने हरा दिया। Who is the ruler of this world? इस दुनिया का हाकिम कौन है? 3 times our Lord says. 3 बार हमारे खुदावंद यीशुवा कहते हैं। John 12:31. यूहन्ना की खुशखबरी 12:31 में लिखा हुआ है। John 14:30. 14:30 में लिखा हुआ है। John 16:11. जॉन 16:11 में लिखा हुआ है। The prince of the world is the evil one. दुनिया का सरदार जो है वो सातान है। Who is this? What is this evil one's work? ये सातान जो है, इसका काम क्या होता है? His name, another name is accuser. उसका दूसरा नाम है, वो है मुफ्तरी। He keeps reminding us of the sins that we have committed. वो हमेशा जो गुनाह हमने किए हैं उनको हमारे जहन में याद दिलाते रहता है। But today, what is the work that has been accomplished by Lord Jesus Christ? लेकिन आज हमारे खुदावंद यीशुवा ने क्या काम किया है? He nailed all the certificate of debts. उसने हर किस्म के कर्ज के सर्टिफिकेट्स को उसने सलीब पर डाल दिया है। Decrees hostile to us. वो हमारे खिलाफ थी, वो सब के सब सर्टिफिकेट्स, And nailed it to the cross. उन सबों को ले जाके सलीब पर उसने रख दिया। There's one beautiful verse. एक बहुत अच्छी आयत है, Romans 16:20. रोमियो की किताब 16:20। The God of peace has given us the power to trample the evil one under our very feet. यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, सातान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। So we have been given that power. तो हमें ये ताकत बख्शी गई है। By the way, the book of Romans is called the Christian Constitution. मुझे बताने दें कि रोमियो की किताब जो है, इसे यीशुई कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। Now for the final words. और अब हम आखिरी बातें सुनेंगे। There was a time when King Jehoshaphat had to face 3 enemies. यहोशाफात बादशाह के सामने 3 तरह के दुश्मन आए थे एक बार। Instead of making preparations for war, जंग के लिए तैयारी करने के बजाय he went to the temple of God and prayed. यहोशाफात बादशाह जो था वो खुदा की हैकल में गया और वहां दुआ में मशगूल रहा। This is found in 2 Chronicles 20. 2 Chronicles 20 में हम ये बातें देखते हैं। And in his prayer, दूसरे तवारीख 20 में और उसकी दुआ में there are 3 prominent questions. वहां पे 3 खास सवाल वो पूछता है। They are worth mentioning, they are worth meditating. और उन ख्यालों को बहुत जरूरी है कि मैं बताऊं और उन पर मुताला भी करें। I will mention this and then close. मैं इन बातों को जरा जिक्र करके मैं खत्म कर दूंगा। 2 Chronicles 20 and verse 6. दूसरा तवारीख की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 6। In English we find this phrase, are you not? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? उर्दू में मैं पढ़ता हूँ, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? आसमान में खुदा नहीं? Are you not the sovereign God? क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? Act on our behalf. इसीलिए हमारे लिए तू जंग लड़। This is the principle of humility. ये है अपने आप को पस्त बनाने वाले, खाकसार बनाने वालों का उसूल। And come to verse 7. और हम आयत नंबर 7 को आएंगे। Did you not? वहां कहता है, क्या तूने ऐसा नहीं कहा? हाँ, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू ने ऐसा नहीं किया? वह कहता है आयत नंबर 7, ए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर Did you not give the land to your friend Abraham? अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया?
So this question says, remembering what God did. यहाँ पे ये वो सवाल पूछकर याद कर रहा है कि खुदा ने क्या क्या किया है। So are you not? Did you not? इसीलिए कहता है क्या तू वो नहीं, क्या तू ही नहीं। And verse 12, और आयत नंबर 12 will you not? वहां कहता है क्या तू नहीं करेगा। ये हमारा खुदा, क्या तू उनका अदालत नहीं करेगा? हाँ, ऐ हमारे खुदा क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा। This is exact from the Urdu Bible. ये उर्दू बाइबल से है। Rejoicing in what we can do. खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है उसको लेकर खुशी मनाना। This is the principle of faith. ये है ईमान का उसूल। If you tell fastly these three things, अगर इन 3 बातों को जल्द ही जल्द हमें बताएं, हम are you बताएं, not? Did you not? Will you not? क्या तू नहीं करेगा, क्या तू ही नहीं रह जो है। What a great prayer Jehoshaphat. यहोशाफात ने जो अच्छी दुआ मांगी है, कितनी अजीम है देखें। He did not make any preparations उसने for war. किसी तरह की तैयारी नहीं की थी जंग के लिए। He just prayed and worshipped, उसने सिर्फ दुआ मांगी और इबादत की and he got a great victory. और उसे बड़ी जीत मिली। So 3 things to remember for worship. तो इबादत के लिए आज शाम को हम 3 बातें याद रखेंगे। Sacrifice of our Lord. हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी। And secondly, we did not have to do anything to obtain redemption, salvation. दूसरी बात यह है कि नजात पाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। And thirdly, और तीसरी बात, all our enemies are under our feet, not the feet of Christ. He has put under our feet. हमारे सारे दुश्मनों को खुदा ने हमारे पैरों के तले, मतलब खुदावंद यीशुआ के पैरों के तले नहीं, हमारे पैरों के तले रख दिया है। And so 3 things in easily. तो आसान तरीके से 3 बातें हैं। Recognize who God is. तो खुदा कौन है वो पहचाने, Remember what He has done. उसने क्या किया है उस एहसास में आए, And rejoice in the work of the Lord. और खुदा के काम जो उसने हमारे वास्ते किए हैं उनमें खुशी मनाए। May God help us to bring a worthy worship. सही तरीके से इबादत लाने की रहमत खुदा हम सबों पर अता फरमाए।